لگاتا تھا تو جب نعرہ تو خیبر توڑ دیتا تھا، حکم کرتا تھا دریا کو وہ رستہ چھوڑ دیتا تھا۔ نعرہ لگائیے نعرہ تکبیر، ایسے نہیں گج بج کے لائیے، تو ٹوک انداز میں بلا جھجک بلا دھڑک بلا اٹک بولیے نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ شان محمد مصطفیٰ، شان صحابہ، اکابرین علماء دیوبند پاکستان، حضرت مولانا علامہ یحییٰ عباسی صاحب حافظہ اللہ۔ درود پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ سبحان اللہ سبحان اللہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ صاحب التاج والمعراج سید الانس والجنات محبوب رب الارض والسماوات الذي اسمه مكتوب في الإنجيل والتوراة أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن وفي مقام آخر محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم
وفي مقام آخر والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون آمنت بالله صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أنا وأبو بكر وعمر خلقنا من تربة واحدة وفيها ندفن وفي مقام آخر من سبني فاقتلوه ومن سب أصحابي فاجلدوه وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين ہم نے ہر دور میں تقدیس رسالت کے لیے تقدیس رسالت کے لیے وقت کی تیز ہواؤں سے بغاوت کی ہے، توڑ کر سلسلہ سیاست کے فصوں کو ہم نے اصحاب پیمبر سے محبت کی ہے۔ اصحاب پاک مصطفیٰ کو رب نے کیا جگر دیا، اصحاب پاک مصطفیٰ کو رب نے کیا جگر دیا۔ بہرحال بے دھڑک سب نے مال و زر دیا، کسی نے سلسلہ دیا، کسی نے نصف گھر دیا، پر عائشہ کے باپ نے دیا تو اس قدر دیا، خدا کے نام کے سوا جو کچھ تھلا کے دھر دیا۔ جس کو صدیق ذات خدا نے کہا اور صدیق ہی مصطفیٰ نے کہا، جس کو صدیق سب اولیاء نے کہا اور صدیق ہی مرتضیٰ نے کہا، ہم بھی کہتے ہیں صدیق صدیق ہے، جو نہ صدیق مانے وہ زندیق ہے۔ تکبیر میں، کلمے میں، نمازوں میں، اذان میں ہے نام الہی سے ملا نام محمد۔ تکبیر میں، کلمے میں، نمازوں میں، اذان میں ہے نام الہی سے ملا نام محمد۔ فرماتے تھے آدم کہ مجھے خلد بری نے لکھا ہوا طوبہ پہ ملا نام محمد۔ میرے واجب الاحترام قابل صد اعزاز ذی قدر علماء کرام، شعراء کرام، قراء حضرات، طلباء کرام، عمائدین علاقہ، معززین شہر، صحافی حضرات، سرکاری اہلکاران، حاضرین و سامعین، بزرگان دین اور نوجوان دوستو، آج ایک مرتبہ پھر 5 نومبر سن 2020 کو آپ حضرات کے اس خانیوال شہر کے سالانہ پروگرام میں پیر طریقت، رہبر شریعت، پیکر اخلاص و سادگی
حضرت مولانا عبد الماجد صدیقی صاحب اور برادر مکرم عالم باعمل حضرت مولانا سیف اللہ شاہ صاحب کی پرخلوص دعوت پر برادر مکرم حضرت مولانا حفیظ اللہ صاحب کی وساطت سے حاضری کا اتفاق نصیب ہوا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت میری اور آپ کی اس حاضری کو اپنی دربار میں قبول و منظور فرمائے، بیماروں والی نہیں صحت مندوں والی آمین۔ میں گزشتہ برس بھی آپ کی اسی کانفرنس میں حاضر ہوا تھا اور آپ میں سے اکثر حضرات میرے ذوق سے واقف ہیں، میرے انداز خطابت سے آشنا ہیں کہ دل سے بولتا ہوں اور دل میں اتارتا ہوں۔ میں کوئی لمبی چوڑی تقریر کرنے کا عادی نہیں ہوں، تھکا دینے والی، سلا دینے والی، رلا دینے والی، گھما دینے والی، بھلا دینے والی، بلکہ کوشش کرتا ہوں کہ کام بولوں اور کام کا بولوں۔ مگر شرط یہ ہے کہ سامنے جو مجمع بیٹھا ہو تو ان کی بھی مدھم لائٹیں اور ڈم چہرے نظر نہ آئیں، بلکہ جس طرح ہم اپنی لاکھوں تھکاوٹوں کے باوجود تمہارے سامنے چہک اور مہک کے آتے ہیں کہ تم ہماری تھکاوٹ اور تھکا ہوا چہرہ دیکھ کر کہیں پریشان نہ ہو جاؤ کہ مولوی صاحب تھکے ہوئے نے کی کہنے گے۔ تو آپ بھی ایسے چہرے لے کر بیٹھے کریں کہ آپ کے چہروں کی مسکراہٹ دیکھ کر ہماری بھی تھکاوٹ اتر جائے۔ ایک دفعہ گونج کے کہو سبحان اللہ۔ نہیں میں کہا کرتا ہوں نا، مجاوروں والی نہیں، مجاہدوں والی کہو سبحان اللہ۔ کینیڈا کے مولوی کے دھرنے والی نہیں، آزادی مارچ والی سبحان اللہ۔ میرے دوستو، اگر آپ کا ذوق تازہ ہو اور آپ تھوڑا جاگ کر بیٹھے اور ذوق و شوق سے بیٹھیں گے تو میں آج اس رات میں آپ کو ایک رات کے تارے دکھانا چاہتا ہوں۔ جو زندہ بیٹھے ہیں وہ بولے، جن کو گھر سے کھانا ملتا ہے نا وہ بولے۔ تم بڑے چالاک ہو، مقرر کو عرق میں غرق کر دیتے ہو، خود ہلتے ہی نہیں۔ جس طرح مولانا ضیاء القاسمی مرحوم کہا کرتے تھے کہ گیلے کاغذ کی طرح ٹھہری زندگی اپنی، گیلے کاغذ کی طرح مولانا سیف اللہ خالد صاحب آپ کی نظر کہ گیلے کاغذ کی طرح ٹھہری زندگی اپنی، کوئی لکھتا بھی نہیں، کوئی جلاتا بھی نہیں۔ تو وہ گیلا کاغذ نہ بنا کرو کہ نہ لکھنے کے لائق نہ جلانے کے لائق، بالکل زندہ دل ہو کے بیٹھا کرو تاکہ 2 گھنٹے والی گفتگو بھی میں پونے گھنٹے میں آپ کے دلوں میں اتار سکوں۔ میرے دوستو، مجھے حکم ہوا ہے کہ آج میں آپ کے سامنے نبی و صدیق کا ذکر کروں۔ اور پچھلی دفعہ بھی شاید مجھے کچھ دوستوں نے اصرار مطالبہ کیا تھا، مگر میں نے کہا تھا پینڈنگ رکھتا ہوں۔ اس سال میں پیغمبر کے شان کی جھلک دکھلاؤں گا، اور میں نے کہا تھا کہ آئندہ سال میں صدیق کے سر کے تاج کے ہیروں کی چمک دکھاؤں گا۔ اس لیے آپ کی پوری توجہ رہے تو میں بات کا آغاز بلا تمہید کے کرنا چاہتا ہوں کہ ایک رات کا سناٹا تھا، رات کی تاریکی تھی، رات کی ظلمت تھی، رات کا اندھیرا تھا، رات کی تنہائی تھی، رات کی رانائی تھی، رات کی یکتائی تھی، اور طیبہ کائنات، طاہرہ کائنات، زاہدہ کائنات، عتیقہ کائنات، عفیفہ کائنات، حبیبہ حبیب خدا جناب سیدہ عائشہ صدیقہ سب کے دو رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے پیغمبر کے قدموں میں بیٹھی ہے۔
अचानक आसमान पे नजर पड़ी तो तैयबे कायनात ने देखा कि आसमान पर सितारे जगमगा रहे हैं। तैयबे कायनात की नजर पड़ी तो देखा आसमान पर सितारे झिलमिला रहे हैं, तिलमिला रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। तैयबे कायनात की नजर पड़ी तो तैयबे कायनात ने देखा कि आसमान पर सितारे चमक और दमक रहे हैं, चहक और महक रहे हैं। तो तैयबे कायनात ने अल्लाह के पैगंबर से पूछा, फिदा का अबी व उम्मी या रसूल अल्लाह, हुजूर मेरे माँ बाप कुर्बान, जरा आज मुझे ये तो बताएं कि ये जो आसमान पर सितारे चमक और दमक रहे हैं, इन सितारों की तादाद क्या है? तो अल्लाह के पैगंबर ने फौरन ये नहीं कहा, आयशा मैं आलिमुल गैब हूं, अभी बताता हूं, बल्कि अल्लाह के पैगंबर ने कहा, वल्लाहु आलम अना ला अदरी, आयशा अल्लाह जानता है कि इनकी तादाद क्या है, लेकिन हाँ मेरा एक आइडिया है, मेरा एक गेस है, मेरा एक विजदानी कैफियत का इजहार तखय्युल और तसव्वुर है कि ये सितारे लातादाद हैं, ये सितारे बेशुमार हैं, ये सितारे अनगणित हैं। ये सितारे अगर कोई इंसान गिनना चाहे तो वो गिनते गिनते थक सकता है, मर सकता है, उकता सकता है, कैलकुलेशन का निजाम फेल हो सकता है, हिंद से खत्म हो सकते हैं, लेकिन इन सितारों को कोई तादाद में शुमार नहीं कर सकता। तो तैयबे कायनात ने फौरन सवाल कर दिया, अल्लाह के पैगंबर अगर ये सितारे लातादाद हैं, अगर ये सितारे बेशुमार हैं, अनगणित हैं, फिर मुझे ये तो बताएं कि आपकी पूरी उम्मत में, आपके पूरे असाब में, आपकी पूरी आल में, आपकी पूरी जमात में, आपके सारे यारों में, आपके पैरोकारों में, आपके इन हुब्बदारों में, आपके जानिसारों में, आपके इन वफादारों में, आपके इन वफाशियारों में कोई ऐसा भी है कि जिसकी नेकियां आसमान के सितारों से भी ज्यादा? नारे तकबीर, अज़मत मुस्तफा, मकाम मुस्तफा, शान सहाबा, उलमाए हक, उलमाए देवबंद, नारे तकबीर। हुजूर कोई ऐसा भी है कि जिसकी नेकियां आसमान के सितारों के बराबर हो? तो अल्लाह के पैगंबर ने बिला तवक्को फिल बदी, हाँ फौरन जवाब दिया, पर जुस्ता जवाब दिया, इधर उधर देख के नहीं, कैलकुलेट करके नहीं, सर खुजा के नहीं, सोचो विचार करके नहीं, बल्कि फौरन कहा, हाँ आयशा मेरे यारों में, मेरे प्यारों में, मेरे वफादारों में, मेरे इन हुब्बदारों में, मेरे जानिसारों में, मेरे इन वफादारों में मेरा यार उमर बिन खत्ताब वो मुकद्दस इंसान है कि जिसकी नेकियां आसमान के सितारों से भी ज्यादा। अल्लाह के पैगंबर ने जब ये जवाब दिया तो तैयबे कायनात खामोश हो गई, मोहर बलब हो गई, सुकूतो सन्नाटा छा गया, खामोशी तारी हो गई। अल्लाह के पैगंबर तो चेहरा शनास थे और तैयबे कायनात के चेहरे के खदोखाल को पढ़ना तो मेरे पैगंबर का कमाल था। अल्लाह के पैगंबर ने जब देखा कि मेरे जवाब के बाद तैयबे कायनात खामोश हो गई, सुकूत हो गया, सन्नाटा तारी हो गया, मोहर बलब हो गई, तो अल्लाह के पैगंबर ने पूछा, आयशा आयशा क्या बात है? मेरे जवाब के बाद तेरे चेहरे पे इजहार मुसर्रत नुमाया नहीं हुए? आयशा क्या बात है? मेरे जवाब के बाद तेरी जमीन पर मुसर्रत की किरण रक्सा नजर नहीं आई? आयशा मेरे जवाब पर तू खुश नहीं हुई, मुतमईन नहीं हुई? खाने वालों, पैगंबर का और तैयबे कायनात का ये जरा मुज़ाकरा सुनो, तुम्हारा ईमान ताजा होगा। अल्लाह के पैगंबर ने कहा, आयशा क्या बात है, आप खामोश क्यों हो गई? तो तैयबे कायनात ने कहा, अंदाज़े खताबत में कहता हूँ, तसव्वुरे खताबत में कहता हूँ, तैयबे कायनात ने कहा होगा, अल्लाह के पैगंबर आज मेरी एक बहुत बड़ी गलत फहमी दूर हो गई। हुजूर ने पूछा, आयशा वो कौन सी? तो तैयबे कायनात ने कहा, अल्लाह के पैगंबर मैं तो आज तक ये समझती थी कि शायद आपकी पूरी उम्मत में, आपके सारे असाब में, आपकी सारी जमात में, आपके सारे यारों में, आपके इन पैरोकारों में, आपके इन वफादारों
बकर सबसे आगे होगा। इबादत में अव्वल, इताअत में अव्वल, रियाजत में अव्वल, तिलावत में अव्वल, हम्दो सना में अव्वल, तंजीद और तकदीस और तारीफ और तामीद और तस्बीह और तालील में वो सबसे अव्वल। जज्बे में, ईसार में, कुर्बानी में, तड़प में, चाहत में, वजद में, कैफ में, सुरूर में, मस्ती के आलम में, आपकी खिदमत में वो सबसे आगे होगा। लेकिन आपने मेरे सवाल के जवाब में मेरे बाप अबू बकर का नाम नहीं लिया बल्कि उमर का नाम लिया, तो मैं आज समझ गई मेरा बाप अबू बकर पीछे रह गया, उमर मेरे बाप से आगे निकल गया। खाने वालों, पैगंबर का जवाब सुनो, तुम्हारा ईमान ताजा हो और तुम्हें अज़मत सिद्दीक के मीनारों की बुलंदी का अंदाजा हो। मेरे पैगंबर ने कहा, आयशा आयशा आयशा, तूने ये पूछा है कि सितारों से ज्यादा नेकियां किसकी है? तूने ये तो नहीं पूछा कि सारों से ज्यादा नेकियां किसकी है? नारे तकबीर, अज़मत मुस्तफा, मकाम मुस्तफा, सदाकत सिद्दीक अकबर, सदाकत सिद्दीक अकबर, सदाकत सिद्दीक अकबर, अदालत उमर फारूक, सखावत उस्मान, हयाए उस्मान, शुजात अली, शहजादे अहले सुन्नत अल्लामा याह्या अब्बासी साहब। मेरे नहीं, मैं पिछले साल भी मैंने कहा था कि मुझे अपने नारे नहीं चाहिए, बाबा जी बाद में लगाने ना, मुझे अपने नारे नहीं, अल्लाह रसूल साहब अहले बैत और उलमाए हक के नारे चाहिए। मैं तो इनके जूतों का खादिम हूँ, वर्कर हूँ, नौकर हूँ, चाकर हूँ, कारकुन हूँ, खादिम हूँ, रजाकार हूँ। हाँ, मैं जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारों के लायक नहीं हूँ। हमारी तो यही आनिया जानिया अल्लाह की दरबार में कबूल हो जाएं तो यही काफ़ी है, इसलिए। लेकिन जब अल्लाह रसूल साहब अहले बैत का नारा लगाया करो ना, तो फिर वैसे लगाया करो जैसे अली लगाता था। अली को मानते हो? शेरे जली को मानते हो? हक के वली को मानते हो? दामाद नबी को मानते हो? हाँ, फातेह खैबर को मानते हो? कातिल मरहब को मानते हो? अबुल हसन अबुल हुसैन को मानते हो? शोहरा के शोहर सारा को मानते हो? गौहर काबा को मानते हो? जन्नत के शहजादों के बाप को मानते हो? तो फिर वो नारा ऐसे लगाता था जैसे शायर ने कहा था कि लगाता था कि वो जब नारा तो खैबर तोड़ देता था, हुक्म देता था दरिया को तो रास्ता छोड़ देता था। माइक वालों को चाय पिलाओ ना, बेचारे को गला खत्म हो गया उनको। हाँ, उनको कोई एक थर्मास रगड़ा दो उनको। हाँ, माइक पकड़ के बैठ जाते हैं, फिर सांस फूल जाता है। तवज्जो है, जिनकी है कह दो सुभान अल्लाह। वो समझते हैं शायद इधर कोई कंप्यूटराइज मशीन चल रही है, सांस ही नहीं लेना। हाँ, इसलिए पूरी तवज्जो रहे। मैं आपकी नफासत को देखते हुए बात को बिल्कुल क्लोज करता हूँ, वाइंड अप करता हूँ, शॉर्टकट करता हूँ ताकि आपको ज्यादा तकलीफ न दूं, क्योंकि मैं आपसे थका हुआ भी ज्यादा हूँ, आपसे नखरेबाज भी ज्यादा हूँ, आपसे वीआईपी भी ज्यादा हूँ। इसलिए मैं आपसे मुकाबला नहीं करता, मैं आपकी नफासत लताफत को देखकर बड़ा मुख्तसर करता हूँ। तवज्जो रहे मेरे दोस्तों, मैं अर्ज कर रहा था, अल्लाह के पैगम्बर ने कहा, आयशा आयशा आयशा, तूने ये पूछा है कि सितारों से ज्यादा नेकियां किसकी है? तूने ये तो नहीं पूछा कि सारों से ज्यादा नेकियां किसकी है? अगर तू मुझसे ये पूछती कि सारों से ज्यादा नेकियां किसकी है, तो फिर ज़बाने मोहम्मद से सुन, फरमाने मोहम्मद से सुन, ऐलाने मोहम्मद से सुन, बयाने मोहम्मद से सुन, कलामे मोहम्मद से सुन, विस्ताने मोहम्मद से सुन, लिसाने मोहम्मद से सुन, फरमाने मोहम्मद से सुन कि उमर की सारी उम्र एक तरफ तेरे बाप की हिजरत वाली एक रात का मुकाबला नहीं कर सकती। नारे तकबीर, अज़मत मुहम्मद मुस्तफा, अज़मत सहाबा, सदाकत सिद्दीक अकबर, नारे तकबीर। आयशा, उमर की सारी उम्र एक तरफ, तेरे बाप की हिजरत वाली एक रात का मुकाबला नहीं कर सकती। इस मकाम पे आकर मैं उलमा से, खुतबा से, ज़ुआमा से, शुआरा से, कुर्रा से, अहले इल्म से, अहले नज़र से, अहले उमुक से, अहले दिल से, अहले शौक से
कहा करता हूँ कभी बैठकर इस जुमले में, इस समंदर में गोता जन होकर कभी आपने डीप में, उमुक में, गहराई में जाकर सोचा है कि अल्लाह के पैगंबर ने कितना बड़ा जुमला कह दिया? जिंदा बोलो, जिंदा। अल्लाह के पैगंबर ने कितना बड़ा जुमला कह दिया कि आयशा, उमर की सारी उम्र एक पर, उमर की कौन उमर? मैं जिसकी सीरत पे बोलूं मेरी उम्र कम हो जाए। कौन उमर? मैं जिसकी अजमत पे बोलूं मेरी उम्र बीत जाए। उमर के लिए अल्लाह के नबी ने ये जुमला कह दिया कि आयशा, उमर की सारी उम्र एक तरफ, तेरे बाप की एक रात का मुकाबला नहीं कर सकती। कौन उमर? जिसको मांगने के लिए मेरा पैगंबर हतीमे काबा में रोता नजर आए। कौन उमर? जिसको मांगने के लिए मेरा पैगंबर रब की दरबार में सजदे करता नजर आए। कौन उमर? जो कलमा पढ़े तो फरिश्ते भी नारे लगाते नजर आए। कौन उमर? जो कलमा पढ़े तो सहाबा भी मुस्कुराते नजर आए। कौन उमर? जो कलमा पढ़े तो इस्लाम जवान होता नजर आए। कौन उमर? जो कलमा पढ़े तो काबे का दर भी खुलता नजर आए। कौन उमर? जो कलमा पढ़े तो पैगंबर भी खुश होते नजर आए। कौन उमर? जो नबी को मशवरा दे अल्लाह शरीयत बनाता नजर आए। कौन उमर? जो जमीन पे बोले अल्लाह आसमान पे कुरान बनाता नजर आए। कौन उमर? जो नबी को पर्दे का मशवरा दे अल्लाह शरीयत बनाता नजर आए। कौन उमर? जो मकाम इब्राहिम पे नफल का इरादा करे अल्लाह क़यामत तक हज का हिस्सा बनाता नजर आए। कौन उमर? जो आयशा की सफाई में जो जुमला कहे अल्लाह उस जुमले को सेम टू सेम कुरान बना के उतारता नजर आए। कौन उमर? जिसके लिए पैगंबर कहे लौकाना बाकी नबिय्युन लकाना उमर। कौन उमर? जिसके लिए पैगंबर कहे उमर जब किसी का बाप मरे तो बच्चे रोते हैं, बच्चा मरे उसका बाप रोता है। जिस दिन तू मरेगा मेरा इस्लाम रोएगा। कौन उमर? जिसके लिए पैगंबर कहे उमर जिस गली से तू गुजरेगा शैतान नहीं गुजरेगा। गली गली नगर नगर, गली गली नगर नगर, अदालत उमर फारूक, शुजात अली, नारे तकबीर। उस उमर के लिए, उस उमर के लिए अल्लाह के पैगंबर ने कह दिया आयशा, उमर की सारी उम्र एक तरफ, तेरे बाप की एक रात का मुकाबला नहीं कर सकती। आओ खाने वालों में तुम्हें उस रात के तारे दिखाऊं। जिंदा बोले, जिंदा। मुर्दों से तो मैं मुखातब हुआ ही नहीं करता, मैं तो जिंदों से होता हूं। आओ मैं तुम्हें उस रात के तारे दिखाऊं, मैं तुम्हें उस रात की गलियों में ले जाऊं, मैं तुम्हें उस रात की सैर कराऊं, मैं तुम्हें उस रात के फूलों की खुशबू की महक सुनाऊं। आओ मैं तुम्हें पैगंबर के यार गार, यार मजार, सिद्दीक़ अकबर की असमत के मीनारे दिखाऊं। ये वो रात है। बिला तमहीद के बड़ा मुख्तसर शॉर्टकट सी गुफ्तगू करना चाहता हूँ, हालांकि मेरा ये 2 घंटे का मौजू है, मैं उसको कोशिश करूंगा चंद मिनटों में वाइंड अप करने का। हाँ, आज एक रात है, मेरे पैगंबर अपने बिस्तर पे वैब इस्तराहत है। शेर खुदा असदुल्लाह अल गालिब, अबू तुराब, शौहरे ज़ारा, गौहरे ज़ारा, जन्नत के शहजादों के बाप जनाबे अली शेर जली हक का वली, वो भी मेरे पैगंबर के साथ वैब इस्तराहत है। आधी रात का वक्त है। अचानक शेर खुदा कहते हैं मेरे कानों में शोर आया कि गली में कोई शोर शराबा है। अली शेर खुदा कहते मैं उठा, मैंने दीवार से झांका तो मैंने देखा गली में तो काफिर नंगी तलवारें लेके लहरा रहे हैं और एक दूसरे से कह रहे हैं नऊज़ आज की रात मोहम्मद की आखिरी रात है। आज हम मुसलमानों के नबी को नऊज़ शहीद कर देंगे। अली शेर खुदा ने जब ये जुमले सुने परेशानी इंतहा को हुई कि काफिर जमा होकर, मक्के के सारे सरदार जमा होकर, मक्के के सारे यार बकार जमा होकर मेरे नबी को मारने आए हैं। तो अली शेर खुदा भागते हुए आए और आके पैगंबर को जगाया। खाने वालों मेरे जुमलों पे तवज्जो रखना, मैं पूरी तकरीर में सिर्फ चंद जुमले तुम्हें दूंगा, वो लफाजी नहीं होगी, वो सिर्फ जुमला
मामला साजी नहीं होगी, वो सिर्फ तखय्युल की शायरी या खिताबत की शायरी नहीं होगी, बल्कि अगर गौर करोगे तो वो समंदर में छुपे हुए हीरे होंगे। मेरे जुमलों पे तवज्जो करना कि वो अली शेर खुदा भागते हुए आए और आके पैगंबर को जगाया, हुजूर जागे, पूछा अली खैरियत क्या हुआ? अली शेर खुदा ने कहा अल्लाह के नबी खैर नहीं। हुजूर ने पूछा हुआ क्या? अली ने कहा अल्लाह के नबी बाहर काफिर तलवारें लेकर आपको मारने आए हैं। खाने वालों, मेरे पैगंबर की अकीदत में झुकने वालों, मेरे नबी का अकीदा, मेरे नबी की ताकत, मेरे नबी की हिम्मत, मेरे नबी का हौसला, मेरे नबी का हिलम, मेरे नबी का इल्म दे। जब अली शेर खुदा ने कहा अल्लाह के नबी खैरियत नहीं, बाहर काफिर मारने आए हैं, तो पैगंबर ने मुस्कुरा कर कहा अली घबराने की जरूरत नहीं। अली ने कहा हुजूर वो कैसे? हम दो, वो सौ, हम खाली, वो मुसल्ला, घबराने की क्यों जरूरत नहीं? हुजूर ने फरमाया अली 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 मारने वाले अभी आए हैं, बचाने वाला पहले से खड़ा है। नगर नगर गली गली, नगर नगर गली गली, शुजात अली, शुजात अली, नारे तकबीर। ये तुम इनको कुर्सियों पे बिठा देते हो, फिर तवक्को करते हो नारे के जवाब की। कुर्सी आपको पता नहीं है कितना कमीनी चीज है, ये बड़ू बड़ू को घुमा देती है। मैं 2001 में जब अपने सिटी जतोई का नाजिम बना था, तो मैं जब कुर्सी पे बैठता था बिला मुबालगा मैं कुर्सी पे पहले कपड़ा रखवाता था कि इसकी गरमाइश मुझ में ना आ जाए। हाँ, इसलिए ये कुर्सियों पे बैठेंगे अल्लाह रसूल का नाम कब लेंगे बेचारे? या तो इनको कल से खाना नहीं मिला, या आपने शायद कोई चावल पकाए हैं एंड पे खिलाएंगे, इसलिए इन्होंने कल से छोड़ा हुआ है खाना, चावल खाने हैं। बारह तवज्जो रहे, मैं बात को आगे चलाता हूँ। तो अल्लाह के पैगंबर ने कहा अली घबराने की जरूरत, सारे बोलो घबराने की जरूरत, जोर से बोलो घबराने की जरूरत नहीं। अली ने कहा था वो क्यों? फरमाया इसलिए कि मारने वाले अभी आए हैं, बचाने वाला पहले से खड़ा है। अली शेर खुदा ने कहा, पूरी तवज्जो चाहूंगा, अली शेर खुदा ने कहा हुजूर हुजूर अब क्या होगा? अब क्या होगा? हुजूर ने फिर मुस्कुरा कर कहा अली कुछ भी नहीं होगा, अली कुछ भी नहीं होगा। अली शेर खुदा ने कहा कब, वो कैसे? एक जुमला देने चला हूं, खाने वालों दिल के दरीचे खोल के बैठना, मेरे जुमले को दिल के कंप्यूटर में सेव करना, बड़ी देर तक एंजॉय करते रहोगे। हाँ, अली ने पूछा हुजूर वो कैसे? कुछ नहीं होगा, वो कैसे? हुजूर ने फरमाया होगा अली तमाशा तो देख, मैं इन हरामियों के साथ करता क्या। अली एक जुमला देने चला हूं, तैयार रहना, मेरे जुमले को जाया न करना। अली तमाशा तो देख, मैं इन कंजरों के साथ, सूरों के साथ करता क्या हूं। अली ने पूछा था क्या करेंगे? हुजूर ने फरमाया देखना, अभी मट्टी उठाऊंगा, शातल वजू पढ़ूंगा, इनके चेहरों में डालूंगा, ऐसी डालूंगा। खाने वाले मेरे जुमले के लिए तैयार रहना। अली अभी मट्टी उठाऊंगा, शातल वजू पढ़ूंगा, इनके मुंह में डालूंगा, ऐसी डालूंगा कि डालूंगा आज रहेगी कयामत तक। नारे तकबीर, अज़मत मुहम्मद मुस्तफा, शान सहाबा, उलमाए हक, उलमाए देवबंद। डालूंगा आज, अल्लाह करे कोई स्टेज से ही सुभान अल्लाह आ जाए। मैं इसलिए पीछे देखता ही नहीं हूँ कि पीछे तो नुक्ते वाले बैठे होते हैं, जिन्होंने नुक्ते लगाने होते हैं उल्टा, इसलिए मैं आगे मुखातब होता हूँ। फीडबैक वो कहते तो फीडबैक है ना जो पीछे से आए, लेकिन हम फ्रंट बैक चाहते हैं। पूरी तवज्जो रहे। अली तमाशा तो देख, मैं इनके साथ करता क्या। अभी मिट्टी उठाऊंगा, शातुल वजू पढ़ूंगा, इनके चेहरों पे डालूंगा, डालूंगा ऐसी कि डालूंगा आज रहेगी कयामत तक। जिंदा होके रहेगी कयामत तक। किसी नकात मौलवी ने मुझसे पूछ दिया अब्बासी साहब कहां से इस्तेमाल किया, रहेगी कयामत तक। मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह मैं सिर्फ खतीब नहीं हूँ, आज भी उस्ताद हदीस हूँ, अपने मदरसे में दौरे के सबक पढ़ाता हूँ।
मैं जामिउल माकूल वल मनकूल भी हूँ। मैंने कहा मेरा तरीके इस्तेमाल ये है, हाँ, कि कहाँ से इस्तेमाल किया कि डालूंगा आज रहेगी कयामत तक। मैंने कहा कि मैंने हदीस पढ़ी है, पूरी तवज्जो खानेवाल वालों, मैंने हदीस पढ़ी है, हुजूर फरमाते हैं कयामत जब आएगी, मुहर्रम का महीना होगा, 10 तारीख होगी। मैंने कहा मिट्टी ढूंढ लेना कहाँ नजर आती है। इसलिए मैंने कहा कि डालूंगा आज रहेगी कयामत तक। उस दिन से कुफ्र अंधा हुआ, आज तक अंधा है। न उस दिन हक नजर आया, न आज हक नजर आता है। न उस दिन हक समझ आया, न आज हक समझ आता है, न कयामत तक समझ आएगा। अब हुजूर ने मिट्टी डाली, सारा कुफ्र अंधा हो गया, हुजूर दरमियान से गुजर गए। मैं कहा है हफीजुल्लाह साहब बैठे ना, नबी और सिद्दीक को इकट्ठे चला रहा। इन्होंने कहा जी नबी और सिद्दीक हूँ, तो मैं नबी और सिद्दीक की कहानी सुना रहा हूँ। हाँ, हुजूर ने मिट्टी डाली, सारे अंधे हो गए और हुजूर दरमियान से, तवज्जो नहीं है, मुझसे बड़ा मेहमान कोई नहीं आएगा। आई एम द चीफ गेस्ट, यू नो। नजर से नजर हटे ना फिर मजा नहीं आता। मजा तो तब है ना कि गिरतों को थाम ले साकी। आंखों में आंखें डाल के बात करने का जो सुनने मजा है ना, बात सुनने का भी वही मजा होता है। इसलिए मैंने शुरू में कहा मैं दिल से बोलता हूँ, दिल में उतारता हूँ। हाँ, मैं वो रस्मी खतीब नहीं हूँ, पूरी तवज्जो रहे। हाँ, हुजूर ने फरमाया मट्टी डालूंगा, कुफ्र अंधा हुआ और हुजूर दरमियान से मेरी तरफ, हुजूर दरमियान से गुजर गए। थोड़ी देर गुजरी, अबू जहल एंड कंपनी, अबू जहल एंड कंपनी, अबू जहल एंड सन, अबू जहल एंड ब्रदर्स, अबू जहल एंड फोर्स, दीवार फलांगी, हुजूर के घर दाखिल हो गए। पूरी तवज्जो एक जुमला देने चला हूं। मेरे पास पत्थरों के पहाड़ नहीं होते, अतरों के कतरे होते हैं। मैं छोटे छोटे जुमले देता हूं लेकिन पूरी उम्र याद रहते हैं, इसलिए पूरी तवज्जो चाहूंगा। हुजूर गुजरे, थोड़ी देर के बाद पूरा कुफ्र, अबू जहल एंड कंपनी, अबू जहल एंड सन्स, अबू जहल एंड ब्रदर्स, अबू जहल एंड फोर्स हुजूर के घर में घुसे। और हुजूर जब रवाना हुए तो अली और मुर्तजा को, शेरे खुदा को, असदुल्लाह अल गालिब को, अबू तुराब को, शौहरे सारा को, गौहरे काबा को, अबुल हसन वल हुसैन को, जन्नत के शहजादों के बाप को, कातिल मरहब को, फातेह खैबर को अपने बिस्तर पर लिटा के गए, अपनी चादर कमली कंबल ऊपर डाल के गए और कहा अली मैं ये अमानतें छोड़ के जा रहा हूँ, सुबह उठना, अमानतें लोगों तक पहुंचाना, मैं यहाँ से वहां जाऊंगा, वहां से उसको लेकर वहां जाऊंगा, फिर वहां से हम वहां जाएंगे। मौना क्या निकला, हुजूर ने अली शेरे खुदा को अपना सारा शेड्यूल, अपना सारा रूट बता दिया था और अली को अपने बिस्तर पर सुला दिया था। अबू जहल जब हुजूर के बिस्तर के करीब आया, एक और जुमला देने चला हूं, फिर दिल के कंप्यूटर खोलना सेव करना। एक और कतरा, अतर का कतरा देने चला। हाँ, जब अबू जहल हुजूर के बिस्तर के करीब आया और पूरी तवज्जो चाहूंगा, करीब आया और आके पैगंबर की चारपाई पे देखा कोई सोया हुआ है, कोई जैसे आप सोए हुए हैं, कोई सोया हुआ है। पूरी तवज्जो, बड़ा कीमती जुमला देने चला हूं आले दिल को, आले दिल की नजर एक जुमला करने चला, फिर एक अतर का खतरा देने चला। अबू जहल ने देखा कि हुजूर के बिस्तर पर कोई सोया हुआ है, तो अबू जहल एंड कंपनी को गलतफहमी लग गई कि शायद ये नबी सोया हुआ है, शायद ये नबी सोया हुआ है। तो अबू जहल ने करीब आकर कहा कुम या मोहम्मद, उठो मोहम्मद उठो। लेकिन जब चेहरे से चादर हटाई तो अबू जहल हैरान, सरगर्दान, पशेमान, अनशबदंदान, आग में गरक होकर तड़पने फड़कने लड़कने कड़कने लग गया कि ये क्या, मैं तो नबी समझ रहा था, ये तो अली है। तो खाने वालों, मैं
फैसला हो गया कि जिसने सबसे पहले, जिसको शाइबा लगा, जिसने सबसे पहले अली को नबी समझा वो अबू जहल था। आज तक उसकी नस्ल समझती है। इसलिए मैं कहता हूं आज भी अगर कोई अली को नबी समझेगा वो अबू जहल की ज़ुर्रियत से हो सकता है, मोहम्मद की उम्मत से नहीं हो सकता। बात आगे चलाता हूं। अली उठे, अबू जहल हैरान परेशान सरगर्दान पशेमान अंगोश बदंदान अर्क में गर्क। पूछता है अली नबी कहां गए? अली नबी कहां गए? अब अली का इल्म देख, अली का हिल्म देख, अली का हौसला देख, अली का तदब्बर देख, अली की फरासत देख, अली की फसाहत देख, अली की बलागत देख, हाँ अली की दूर अंदेशी देख, अली की दूरबीनी देख, अली की फहम फरासत देख, अली की डीप और उमक और गहराई देख। अबू जहल ने पूछा अली नबी कहां गए? तो अली ने ये नहीं कहा मुझे पता नहीं, कहा क्यों? पता था, पता था। हुजूर अपना सारा शेड्यूल रूट बता कर गए थे। मैं यहां से कहां जाऊंगा, उसको लेकर कहां जाऊंगा, फिर वहां से हम कहां जाएंगे। अली तू भी पीछे आ जाना। तो पूरी तवज्जो रहे, अली ने ये नहीं कहा कि पता नहीं। अबू जहल ने पूछा अली नबी कहां गए? तो अली ने कहा वो तो चले गए, वो तो चले गए। अबू जहल ने फिर घुमा के पूछा कहां चले गए? अली ने कहा जहां जाना था, जहां जाना था। अबू जहल ने फिर घुमा के पूछा कहां जाना था? अली ने कहा जहां चले गए। अबू जहल को उल्लू का पट्टा बना दिया, लातों की तरह घुमा दिया, लेकिन न नबुव्वत का राज बताया, झूठ भी नहीं बोला, तकिए का दर भी नहीं खोला, नबुव्वत का राज भी ज़बान पे नहीं लाया। आगे भी अली था, शेरे चली था, हक का वली था, नबुव्वत को भी बचाया, ईमान को भी बचाया। आओ खानेवाल वालों अगले जुमले के लिए तैयार रहो, फिर दिल के कंप्यूटर खोलो। एक और जुमला सेव करने चला हूँ, एक और अतर का कतरा देने चला हूँ। पूरी तवज्जो चाहूंगा आपकी, अगर आप इधर उधर न देखें, पूरी तवज्जो चाहूंगा। मैं बड़ी कोशिश कर रहा हूँ कि दरमियान से बहुत सारी बातें छोड़ूं और क्लोज करूं, शॉर्टकट करूं, नॉन स्टॉप करूं, बाय एयर करूं, सारा कुछ कर रहा हूं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं तक मुझे कश्ती किनारे तो लगानी है। अब अली शेर खुदा ने जब नहीं बताया ना, पूरी तवज्जो चाहूंगा, अबू जहल एंड कंपनी खड़ी थी और समझ गए कि ये अली नबी का तरबियत याफ्ता है, जान दे देगा मगर नबूवत का राज नहीं देगा। अली के नाम पे गूंज के कह दो सुभान अल्लाह, पता चले ना ये भी अली वाले बैठे हैं। अबू जहल ने अपनी फौज को बुलाया और बुलाकर कहा इधर आओ, ये अली शेरे चली हक का वली नबूवत का पता नहीं बताएगा। खानेवाल वालों दिल के दरीचे खोलो, मैं जुमला सेव करूं। अबू जहल कह रहा है मक्का वालों आओ, मैं तुम्हें बताता हूं कि आज मोहम्मद कहां गया होगा। अबू जहल ने अपने साथियों से कहा मक्के वालों मेरा दिल गवाही देता है कि मक्के की धरती पर अबू बकर से बड़ा यार मोहम्मद का कोई नहीं। नारे तकबीर, शान मोहम्मद मुस्तफा, मुस्तफा का हम सफर, मुस्तफा का हम सफर। नारे तकबीर। मक्का वालों, अबू जहल कह रहे हैं, अबू जहल अबू जहल अबू जहल, सारे जाहिलों का बाप कह रहा है कि मक्का वालों मेरा दिल गवाही देता है कि मक्के की धरती पर अबू बकर से बड़ा यार मोहम्मद का कोई नहीं। तो फिर मैं क्यों ना कहूं, तुम्हारे दिल के कंप्यूटर में जुमला सेव क्यों ना करूं कि ये फैसला भी 1400 साल पहले हो गया। पूरी तवज्जो चाहूंगा, उलमा से भी ज़ुआमा से भी, हाँ ये फैसला भी 1400 साल पहले हो गया कि अबू जहल भी अबू बकर को नबी का सच्चा यार मानता था। आज अगर कोई अबू बकर को नबी
1400 साल पहले हुआ कि अबू जहल भी अबू बकर को नबी का सच्चा यार मानता था। आज अगर कोई इस्लामाबाद पे बैठकर अबू बकर पे तबर्रा करे और नबी का सच्चा यार ना माने तो वो तो अबू जहल से भी आगे निकल गया ना। हाँ, इसलिए बात को आगे चलाता हूँ। हुजूर चले, इधर अली और अबू जान एंड कंपनी का मुकालमा हो रहा है, उधर हुजूर दर सिद्दीक पे दस्तक दे रहे हैं। जिंदा हो जाओ, जिंदा। दर सिद्दीक पे दस्तक, अबू बकर दौड़ कर आए। आधी रात को कौन दरवाजा खोला, सामने देखा चौधरी के चांद से ज्यादा चमकता हुआ चेहरा नजर आया। सिद्दीक की आंखों से आंसू छलक पड़े, मोती बह पड़े। हुजूर माज़, ये क्या, आप आधी रात को मेरे दरवाजे पर? हुजूर कोई काम था, कोई कासिद, कोई एलची, कोई नुमाइंदा, कोई पैगाम रसा, कोई गुलाम, कोई नौकर, कोई चाकर, कोई कारकुन, कोई खादिम, कोई रजाकार। हुजूर किसी को भेज कर मुझे तलब फरमाते। पूरी तवज्जो, एक और जुमला देने चला हूँ। हुजूर मुझे तलब फरमाते, मैं सर के बल चल के आता, आपने आने की तकलीफ क्यों गवारा की? तो पैगंबर ने जवाब में कहा होगा, अबू बकर तुझे पता नहीं, वो मायंतिकु अनिल हवा इन हुआ इल्ला वाह्युन यूहा। मैं अपनी मर्जी का मालिक नहीं, मैं तो किसी का पाबंद हूँ। जैसे जैसे वो कहता जाता है वैसे वैसे मैं करता जाता हूँ। नारे तकबीर, अज़मत मोहम्मद मुस्तफा, खिलाफत राशिदा, खिलाफत राशिदा, मुस्तफा का हम सफर, मुस्तफा का हम सफर। नारे तकबीर। सिद्दीक तुझे पता नहीं, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वाह्युन यूहा। मैं अपनी मर्जी का मालिक नहीं हूँ, मैं तो किसी का पाबंद हूँ। जैसे जैसे वो कहता जाता है वैसे वैसे मैं करता जाता हूँ। आज मुझे आर्डर ही नहीं था, मौलाना या शेख इधर दे। आज मुझे आर्डर ही नहीं था कि मैं तुझे बुलाऊं, बल्कि आर्डर ही ये था कि मैं चल के तेरे दर पे आऊं। हुजूर क्यों? तसव्वुर खिताबत में कहता हूं, अल्लाह ने कहा होगा महबूब आज तूने सिद्दीक के दर पे जाना है। अल्लाह वो क्यों? फरमाया इसलिए कि जब कोई बड़ा आदमी किसी छोटे के दर पे चला जाए ना तो उस छोटे की इज्जत बढ़ जाती है। तेरे मेरे दरवाजे पर कोई एमपीए, एमएनए, वजीर, मुशीर, एडवाइजर, मिनिस्टर, सेनेटर, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट कोई आ जाए, तू फूले नहीं समाता। 10 दफा होटल पे चाय पीने जाता है सिर्फ लोगों को बताने के लिए कि मेरे पास मिनिस्टर आया था, मेरे पास गवर्नर आया था, मेरे पास एडवाइजर आया था, मेरे पास सेनेटर आया था। अल्लाह ने कहा अबू बकर जब कोई बड़ा किसी छोटे के दर पे चला जाए तो उस छोटे की इज्जत बढ़ जाती है। अबू बकर मैं तेरी इज्जत ऐसी बढ़ाऊंगा कि तेरे दर पर उसको भेजूंगा जिससे बड़ा कायनात में है ही कोई नहीं। नारे तकबीर, अज़मत मोहम्मद मुस्तफा, शान सिद्दीक अकबर, शान सिद्दीक अकबर, मुस्तफा का हम सफर। सिद्दीक ने पूछा हुजूर कैसे आना हुआ? पूरी तवज्जो मौजू शुरू कर रहा हूँ, या अभी बंद कर दूं? मैं मौजू अभी शुरू कर रहा हूँ। मैंने वैसे पौना घंटा बोलना था लेकिन घंटा होने चला है, मगर फिर भी चाहता हूँ चलो कुछ चंद मिनट गरेबी में दे दूं। सुनेंगे तेरी बात, बस बस तेरी बात, सारी रात वाला चक्कर न चलाओ। मेरा पहला और आखिरी बयान नहीं है, रोजाना के 3-3, 4-4 बयान होते हैं और पूरे मुल्क का सफर होता है। पता नहीं अल्लाह का करम होता है कि माहौल फिर भी गर्म होता है। हाँ, पता नहीं अल्लाह कैसे चलाते हैं, वरना आप लोग तो हमारी तरह एक दिन भी सफर करो तो 3 दिन रेस्ट करते हो। हम तो डे नाइट माशाल्लाह लगे हुए नॉन स्टॉप। बहरहाल ये अल्लाह रब्बुल इज्जत की मदद है और उसकी तरफ से अता की हुई बरकत है। हाँ, फिर भी लोग पूछते हैं बासी साहब उम्र की है थोड़ी, मैं फिर कहना कोई रिश्ते विश्ते का चक्कर है।
आओ फिर तुम्हें उम्र बताता चलूं। आज मुझसे पहले खतीब इस्लाम मौलाना शाहनवाज फारूकी साहब आपके सामने बयान कर रहे थे। इन्होंने जब हिफ्ज मुकम्मल किया था ना, तो इनकी दस्तारबंदी पे मेरा जलसा था। जब हिफ्ज मुकम्मल किया था, दोहरा नहीं। इसलिए पूरी तवज्जो रहे, मैं बाबा हूँ, लगता है ऐसे हूँ यंग, इसलिए मैं कहा करता हूँ अल्लाह का करम है, माहौल गर्म है। पूरी तवज्जो रहे, मैं बात को वाइंड अप करने चला हूँ कि अल्लाह के पैगंबर से सिद्दीक अकबर ने पूछा, हुजूर क्या हो, कैसे आना हुआ? अल्लाह के पैगंबर ने कहा, अबू बकर चलो चलना है, चलो यार बोल पड़ो, चलो चलना है। काबे के रब की कसम, जा सारी तारीख के औराक पलट के देख, वर्क गर्दानी करके देख, तारीख के झरोकों में झांक के देख। जब हुजूर ने कहा ना अबू बकर चलो चलना है, अबू बकर ने कोई आर्गुमेंट, कोई बासो तमीज, कोई मुनाजरा, मुजादला, मुकाबला, मुबासा, मुकालमा तक नहीं किया। हुजूर ने कहा चलना है, अबू बकर चल चल चल। अबू बकर ने ये नहीं कहा आका आधी रात को क्यों, अभी क्यों, घर किसके हवाले करूं, बूढ़ा माँ बाप किसके हवाले करूं, छोटी छोटी बच्चियां किसके हवाले करूं, कारोबार तिजारत किसके हवाले करूं, घर बार किसके हवाले करूं? एक लफ्ज नहीं, हुजूर ने कहा चलना है, अबू बकर चल पड़ा। अब पूरी तवज्जो रहे, चलते 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 हुजूर ने कहा अबू बकर जरा तेज चल, जरा तेज चल, दुश्मन पीछे है, गार तक पहुंचना है, जरा तेज चल। तेज चलने लग गए। पूरी तवज्जो मैं अपने ज़ौक़ अब्बासी में डूब के कुछ बातें किया करता हूँ, वरना तुमने ये सारी दास्तानें हजारों दफा सुनी हुई हैं। मैं उसमें ज़ौक़ अब्बासी का रंग भरता हूँ, मैं उन फूलों को अपनी महक में महकाता हूँ, अपने अंदाज में सुनाता हूँ। पूरी तवज्जो रहे। अब चलते 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 तेज कदमों से चलने लगे। अचानक सिद्दीक अकबर ने कहा, अल्लाह के नबी एक मिनट रोक के मेरी बात तो सुन ले। हुजूर एक मिनट रोक के मेरी बात तो सुन ले। हुजूर ने मुस्कुराकर कहा, अबू बकर अभी तुझे कहा तेज चल, दुश्मन पीछे है, हमने जल्दी मंजिल तक पहुंचना है, और तू तेज चलने की बजाय मुझे कहता है मैं रोक के तेरी बात सुनूं। अबू बकर चलता भी जा, बात करता भी जा, मैं सुनता जाऊंगा। अबू बकर ने कहा, अल्लाह के नबी एक मिनट के लिए रुक जाए, नहीं तो मेरी जान निकल जाएगी। हुजूर रुके और अचानक पीछे देखा और कहा, अबू बकर ऐसा क्या हो गया कि तेरी जान निकलने लग गई? घर बार याद आ गया, बूढ़े माँ बाप याद आ गए, छोटी बच्चियां याद आ गई, कारोबार तिजारत याद आ गया, क्या हुआ अबू बकर? अबू बकर ने कहा, अल्लाह के नबी मैं तो कायनात आपके कदमों की धूल पे कुर्बान कर चुका हूँ, मुझे कुछ याद नहीं आना, लेकिन हुजूर आपके कदमों के निशानों पर लहू के कतरे नजर आ रहे हैं, आपके पांव जख्मी और आप पैदल चले। अबू बकर साथ हो, ये मेरी मोहब्बत गवारा नहीं करती। हुजूर ने मुस्कुरा कर कहा, अबू बकर आधी रात का वक्त, सवारी कोई नहीं, दुश्मन पीछे, पैदल न चलूं, क्या करूं और सवारी कहां से लाऊं? अबू बकर ने रोकर कहा, अल्लाह के नबी अगर सवारी नहीं क्या हुआ, आप अबू बकर के पूरे कंधे मोहम्मद की सवारी बनेंगे। मुस्तफा का हम सफर, मुस्तफा का हम सफर, नारे तकबीर, सदाकत सिद्दीक अकबर, खिलाफत राशिदा। हुजूर आज अबू बकर के बूढ़े कंधे मोहम्मद की सवारी बनेंगे। सिद्दीक बैठे, हुजूर को कंधों पे उठाया, बल्कि मौलाना ज़ियाउल कासमी मरहूम के जुमले कहूँ, अल्लाह उनकी कब्र पे रहमत नाज़िल फरमाए। हाँ, बड़ी खिदमत की, मसरत की उन्होंने भी। उनके जुमले दोहराता चलूं, रिपीट करता चलूं कि सदाकत बैठी, पूरी तवज्जो पीछे से चाहूंगा, सदाकत बैठी, नबूवत को उठाया और लेके चल पड़ा। इसी मकाम पर मौलाना कासिम मरहूम कहा करते थे, आज काला रोता है कि सिद्दीक खिलाफत में गया, आज खटमल रोता है कि सिद्दीक खिलाफत ले गया।
मौलाना कासमी कहते थे कि मैंने तो हिजरत की रात देखा, सिद्दीक कंधों पे उठा के नबूवत ले गए। अब मैं इस मकाम पे अपने ज़ौक़ की भी एक बात करता जाऊं। सिद्दीक बैठे, हुजूर को कंधों पे उठाया और उठा के चल पड़े, उठा के चल पड़े। अगला जुमला कहता हूं, शायद आधा मजमा बोल पड़े। सिद्दीक बैठा, नबूवत को कंधों पे उठाया, उठा के दौड़ पड़ा। चलो शुक्र है आधा बोल पड़ा। अब अगला जुमला कह रहा हूं, देखूंगा, चैलेंज करके कहता हूं, कौन सी गूंगी जबान है जो मेरे इस जुमले के बाद चुप रहेगी। अगर आखिरी कुर्सी तक आवाज ना आई तो सिद्दीक की सदाकत को सलाम नहीं करूंगा, फिर मैं इसी जगह पे बात खत्म करके चला जाऊंगा। मेरा जुमला सुनना और अपने ईमान को ताज़ा करना और मुझे सिद्दीक अकबर की अजमत को सलाम करने के लिए आगे बढ़ाना हुआ। सिद्दीक बैठे, पूरी तवज्जो चाहूंगा, आगे पीछे से, ऊपर नीचे से, दाएं बाएं से, आएं शाएं से, हर तरफ से पूरी तवज्जो चाहूंगा। सिद्दीक बैठे, नबूवत को कंधों पे उठाया और उठा के उड़ पड़ा। उठा के उड़ पड़ा। क्यों? मैं ये जुमला क्यों इस्तेमाल करता हूं? अपने एक्सपीरियंस की बुनियाद पर, तजर्बे की बुनियाद पर। आप लोग माशाल्लाह बहुत सारे उलमा, अवाम, खवास, ताजिर, साफी हज पे, उम्रे पे गए होंगे, बहुत दफा गए होंगे। अल्लाह बार बार ले जाए। आप तो जोर से आमीन कह दो, तुम्हारे भले की बात कर रहा हूँ। हाँ, अल्लाह सबको बार बार ले जाए। इन उलमा से पूछो, और जो अवाम में लोग हज पे या उम्रे पे गए हैं उनसे भी पूछो कि जब हम हज या उम्रे पे जाते हैं ना, तो फिर वो ज़ियारत कराने वाले हमें ले जाते हैं गारे सौर की तरफ। पूरी तवज्जो चाहूंगा, एक और अपने ज़ौक़ का जुमला देने चला हूँ। जब गारे सौर की तरफ ज़ियारत वाले ले जाते हैं ना, तो गाड़ी यहाँ से तो भरी हुई जाती है। जब वहाँ नीचे उतारते हैं ना बकाले के करीब, फिर आधे पंचर हो जाते हैं। आधे लोग पंचर हो जाते हैं। ओ नहीं जी, बहुत दूर है, ना जी ना, मैं तो नहीं जा सकता, मैं तो जी हार्ट का मरीज हूँ, मैं तो गिट्टे गोडों का मरीज हूँ जी, मैं तो गुर्दों का मरीज हूँ जी, मैं तो जी सांस का मरीज हूँ, मैं तो दमे का मरीज हूँ जी, मैं तो जी शुगर का मरीज हूँ, मैं नहीं जा सकता जी, बहुत ऊंचा पहाड़, ऑक्सीजन कम, पत्थरों वाला रास्ता, बस जी यहाँ से देख लिया सवाब हो गया, सवाब हो लिया। यहाँ देख रहे हो, देख लिया सवाब हो लिया। आधे पंचर हो जाते हैं, ऊपर तक नहीं जा सकते। और जो आधे जाते हैं, जो आधे जाते हैं, अल्लाह मुझे अल्हम्दुलिल्लाह तादी से नेमत के तौर पे कह रहा हूँ, तफाखुर के लिए नहीं, 50 से ज्यादा दफा उम्रे पे गया हूँ, 15 से ज्यादा दफा हज पे गया हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक के करम और फजल और इनायत और अता और जुद और सखा की इंतहा से। लेकिन मैं भी 65 मरतबा हरम का सफर कर चुका हूँ, मगर गार तक 2-3 दफा गया। हर दफा नहीं जा सकता, बंदा थक जाता है। पहले थका हुआ होता है हज और उम्रे का, फिर जाता है तो कहते हैं अच्छा यार 2-3 दफा गया था, अब हर दफा जाना जरूरी नहीं है। मतलब क्या है, बंदा थोड़ा सा उकता जाता है कि यार इतनी लंबी चढ़ाई मैं कैसे चढ़ूं। खाने वालों जो अकेले जाते भी हैं, वो रास्ते में क्या करते हैं, बकाला है नीचे, उस बकाले से फ्रूट लेते हैं, जूस लेते हैं, दूध लेते हैं, खजूर लेते हैं, फ्रूट लेते हैं, मिनरल वाटर लेते हैं, और एक दूसरे से कहते हैं आओ यार चलते हैं, खाते पीते जाएंगे, उठते बैठते जाएंगे, सांस लेते जाएंगे, कभी तो पहुंच जाएंगे। हाँ अबू बकर, मैं तेरी वफा पे, अदा पे, हया पे, सखा पे करोड़ों जाने कुर्बान कर दूं, न तू रास्ते में बैठा, न पानी पिया, न सांस लिया, अकेला भी नहीं। नबुव्वत का बोझ कदमों पे है, नबुव्वत का बोझ कंधों पे है, फिर भी तू एक सांस में चढ़ा तो मैं क्यों ना कहूं अबू बकर चला नहीं, दौड़ा नहीं, उड़ा था। सिद्दीक तेरी सदाकत को, सिद्दीक तेरी सदाकत को, सिद्दीक तेरी सदाकत को, खलीफा बिला फस्ल सिद्दीक अकबर, नारा तकबीर। सिद्दीक ने कंधों पे उठाया और लेके उड़ पड़ा, चढ़ गया पहाड़ों पे।
غار کے دہانے پہ پہنچا. 2 جملے میں نے اپنے ذوق کے کہنے ہیں. ایک گزشتہ گفتگو سے کہتا ہوں اور ایک آنے والی گفتگو میں کہوں گا کہ ایک مقام آیا نا جہاں پہ علی شیر خدا نے, پوری توجہ والے ذوق سے کہوں گا, جہاں شیر خدا نے حضور کو جگایا تھا, اسی مقام پر کچھ خطیب اپنے علم کے مطابق, اپنے حلم کے مطابق, اپنے تجربے ایکسپیرینس کے مطابق تھوڑا افراط و تفریط کر جاتے ہیں, مبالغہ آرائی کر جاتے ہیں. تھوڑا سمجھانے میں وہ شاید حقائق تک نہیں پہنچ سکتے. وہاں پہ تھوڑا سا افراط و تفریط نظر آتا ہے کہ جی علی نے جگایا تھا اور صدیق نے سلایا تھا, صدیق نے سلایا تھا. آج میں خانے والوں علماء کے سامنے یہ عقدہ بھی حل کرتا جاؤں, چھوٹا منہ بڑی بات کرتا جاؤں کہ علی نے جگایا کیوں تھا, صدیق نے سلایا کیوں تھا. نہیں, پوری سبحان اللہ کہو گے تو سناؤں گا, آخر تک کہو گے تو بتاؤں گا. اور میں دعوے سے کہتا ہوں جو بات تمہیں بتانے جا رہا ہوں نا, میری کیسٹ میں کسی نے سنی ہو تو سنی ہو, نہیں تو کبھی نہیں سنی ہوگی. ہاں, کہ علی نے جگایا کیوں تھا, صدیق نے سلایا کیوں تھا. خانے والوں, اس میں کسی کا کوئی عروج و زوال نہیں, زوال و کمال نہیں, جلال و جمال نہیں, افراط و تفریط نہیں. پوری توجہ چاہوں گا, ایک جملہ تمہارے دل کے کمپیوٹر میں پھر سیو کرنے چلا ہوں. دونوں نے اپنی اپنی ڈیوٹی ادا کی تھی. بولو بولو تاکہ میں آگے بڑھوں. دونوں نے اپنی اپنی ذمہ داری ادا کی. کیسے؟ اگر آدھی رات کو اچانک گھر میں کوئی دشمن گھس آئے, کوئی سانپ بچھو, کوئی موذی جانور گھس آئے, پوری توجہ سے میرا جملہ سننا, گھس آئے تو پھر اگر چھوٹا جاگ رہا ہو تو اس کی ڈیوٹی کیا ہے کہ جا کے بڑے کو جگائے, جا کے بڑے کو جگائے. بیٹے کی ذمہ داری ہے کہ جا کے باپ کو جگائے اور اسے خطرہ بتائے. اور اگر بڑا جاگ رہا ہو, باپ جاگ رہا ہو اور کوئی خطرہ آ جائے تو اس کی ڈیوٹی کیا ہوتی ہے کہ وہ اپنا سینہ سامنے کرے اور اپنے بیٹے کو لوریاں دے کے سلائے. علی داماد ہے اور داماد بیٹا ہوتا ہے. ابو بکر سسر ہے, سسر باپ کے درجے میں ہوتا ہے. بیٹے کا کام جگانا تھا, اس نے جگایا. باپ کا کام سلانا تھا, اس نے لوریاں دے کے سلایا. دونوں نے اپنی اپنی ڈیوٹی ادا کی. سلانے والے نے موقع پہ سلایا, جگانے والے نے موقع پہ جگایا. اب غار کے دہانے پہ پہنچے, بڑا اختصار کر رہا ہوں. غار کے دہانے پہ پہنچے, میں نے تمہیں شروع میں کہا تھا آؤ اس رات میں گھومتے ہیں, اس رات میں جھومتے ہیں, اس رات میں ڈھونڈتے ہیں کہ ایسا ہوا کیا کہ یہ ایک رات عمر کی ساری عمر کو کراس کر گئی. اس رات میں ایسا ہوا کیا کہ ایک رات عمر جیسے عمر کی ساری عمر کو کراس کر گئی. آؤ خانے والوں تمہیں اس نقطے تک پہنچا کہ اس رات میں ایسا کیا ہوا تھا کہ ایک رات عمر کی ساری عمر کو کراس کر گئی. پوری توجہ چاہوں گا. ہوا یہ علماء کرام, ہوا یہ کہ صدیق نے جب حضور کو کندھوں سے اتارا غار ثور کے دہانے پر, مجھے جو عرق ریزی کے بعد اس سمندر میں غوطہ زن ہونے کے بعد جو ہیرا ملا, موتی ملا, در یکتا ملا, وہ میں تمہارے دامن میں سجانا چاہ رہا ہوں کہ میں نے کیا اس رات میں پایا کہ ایسا کیا ہوا تھا کہ ایک رات عمر کی عمر سے آگے بڑھ گئی. ہاں, مجھے جو ملا وہ آپ کو بتانے چلا ہوں کہ میری عرق ریزی اور میرا استنباط اس میں کیا ہے. میرا اس میں ڈیپ اور گہرائی میں جانے کے بعد مجھے کیا سمجھ آیا کہ یہ ایک رات عمر کی پوری عمر کو کراس کیوں کر گئی. جب 3 میل لمبی پہاڑی کا سفر طے کر کے نبوت کو کندھوں پہ اٹھا کر ابو بکر غار ثور کے دہانے پہ پہنچا اور پیغمبر کو اتارا تو حق بنتا تھا. خانے والوں میرے جملے کو ضائع نہ کرنا, حق بنتا تھا. ابو بکر کہتا حضور میں پورا
अल्लाह की दरबार में इतना कीमती बना ये जुमला कि हक बनता था अबू बकर थकता, क्योंकि कंधों पे उठा के तो वो लाया है। बूढ़ा भी है, पत्थर भी है, पहाड़ भी है, चढ़ाई भी है, ऑक्सीजन की कमी भी है, रात का अंधेरा भी है, सन्नाटा भी है, दुश्मन पीछे आ भी रहा है। चाहिए तो ये था अबू बकर कहता, कंधों से उतारता और कहता हुजूर मैंने गार तक पहुंचा दिया, अब इजाजत हो तो 2 मिनट आराम कर लूं, सांस ले लूं, रेस्ट कर लूं, कमर सीधी कर लूं, पानी के 2 घूंट पी लूं। अबू बकर ने एक जुमला भी नहीं कहा, बल्कि उल्टा कहा, हुजूर आप थक गए होंगे, मैं अंदर जाके बिस्तर बनाता हूं, आप आके आराम करें। हुजूर ने मुस्कुरा कर पूछा, अबू बकर बिस्तर तो घर से नहीं लाए थे, बिस्तर कहां से लाओगे? तो अबू बकर ने फिर मुस्कुरा कर कहा, अल्लाह के नबी अगर सवारी नहीं थी, अबू बकर के बूढ़े कंधे मोहम्मद की सवारी बन गए। अगर बिस्तर नहीं है तो क्या हुआ? आज अबू बकर की झोली मोहम्मद का बिस्तर बनेगी। हुजूर ने कहा, अबू बकर बिल्कुल आखिरी किनारे पे पहुंच गया हूं, इस समंदर की आखिरी लहर तक तुम्हें लेके चल रहा हूं। हुजूर ने कहा, अबू बकर ठीक है, चलो अंदर चलते हैं, चलो अंदर चलते हैं। एक और जुमला दिल के कंप्यूटर में सेव करो, क्या याद करोगे? चलो अंदर चलते हैं। सिद्दीक ने कहा, अल्लाह के नबी नहीं, आप बाहर रुके, पहले मैं जाऊंगा। बोल पड़ो, बोल पड़ो, पहले मैं जाऊंगा, पूरी तवज्जो, पहले मैं जाऊंगा। हुजूर ने पूछा, अबू बकर वो क्यों? दुश्मन पीछे, मैं बाहर खड़ा रहूं। तो सिद्दीक ने ज़बाने हाल से कहा होगा, हुजूर दुश्मन पीछे है तो दुश्मन आगे भी है, दुश्मन पीछे है तो दुश्मन आगे भी है। हुजूर पहले मैं अंदर जाऊंगा। हुजूर ने पूछा क्यों? सिद्दीक ने ज़बाने हाल से कहा होगा, हुजूर शायद अंदर कोई काला, नीला, पीला, सावा, कोई सांप, बिच्छू, खटमल अंदर पड़ा हो, पहले मैं उसे कुचलूं, आप तक ना आने दूं। हुजूर पहले अंदर जाऊंगा, झाड़ू दूंगा, सफाई करूंगा, फिर आपको बुलाऊंगा। हुजूर ने फिर मुस्कुरा कर पूछा, अबू बकर ये आधी रात को झाड़ू कहां से लाओगे? झाड़ू तो हम घर से नहीं लाए थे, झाड़ू कहां से लाओगे? तो सिद्दीक ने फिर मुस्कुरा कर कहा, अल्लाह के नबी अगर सवारी नहीं थी, अबू बकर के कंधे सवारी बन गए, बिस्तर नहीं है, अबू बकर की झोली बिस्तर बनेगी, झाड़ू नहीं है तो क्या हुआ? आज अबू बकर की पगड़ी मोहम्मद का झाड़ू बन। सिद्दीक गार में गए और अपनी पगड़ी उठा के झाड़ू बना के गार की सफाई की, टुकड़े करके सुराखों को बंद किया, रिदा के टुकड़े सुराख बंद, एक रिवायत में है कमीज के टुकड़े सुराख बंद, एक सुराख फिर भी बच गया, एक रिवायत में 2 सुराख फिर भी बच गए। अबू बकर ने अपनी झोली फैलाई और अपने दोनों पांव उन दोनों सुराखों पे रखे और झोली फैलाकर पैगंबर को बुलाया, हुजूर बिस्तर बन गया, आके आराम करें। हुजूर आए और आकर सिद्दीक की झोली में सर मुबारक रखा, बिल्कुल क्रीम, मक्खन, खुलासा, पूरी तकरीर का मंबा, मावा, मलजा, मेहवर, मरकज सरापा देने चला। हाँ, सिद्दीक हुजूर आए और सिद्दीक की झोली में सो गए, सर रख के सो गए। अमीर शरीयत सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी सब कह दो रहमाउल्लाह, इस मकाम पे आकर वजद में आकर कहा करते थे कि जब झोली सदाकत की थी, सर नबूवत का था। जब झोली सदाकत की थी, सर नबूवत का था। मंजर ऐसे था जैसे रहल में कुरान होता है। हुजूर आए, अब अपने ज़ौक़ का एक जुमला कहने चला हूं, तवज्जो रखना। मैं अकाबिर की सुन्नत पे अमल करता हूं, एक जुमला अकाबिर का, एक जुमला असागिर का। एक अपने ज़ौक़ का जुमला देने चला हूं। हुजूर आए, पूरी तवज्जो चाहूंगा। हुजूर आए, आकर सदाकत की झोली में सर रखा और आकर सो गए। आकर बोलो सो गए। अब जरा तवज्जो करके मेरे सवाल का जवाब देना, तवज्जो करके आगे पीछे वाले। जब हुजूर आके झोली में सोए, झोली सदाकत की थी,
सर नबूवत का था, झोली सदाकत की थी, सर नबूवत का था। पूरी तवज्जो से मुझे जवाब देना। झोली सदाकत की थी, सर नबूवत का था। ईमान से बताओ खाने वालों, दरमियान में कोई फासला था? सारे बोलो, कोई फासला था? तो फिर क्यों ना कहूं मंजर बना बिला फासला। अल्लाह करे दो चार तो मेरी बात सुनो, दो चार तो मेरे ज़ौक़ की गहराई तक उतर जाए। मंजर तकबीर, ताजदारे खत्म नबूवत, शाने सहाबा, जबते आत्माए सुन्नत काबिर अलमाए दो पर, तेरा बासी मेरा बासी, मुजाहिद इस्लाम या बासी। मेरे दोस्तों तवज्जो रहे। सुभान अल्लाह। झोली सदाकत की थी, सर नबूवत का था। मैंने शुरू में आपको कहा पूरी तकरीर का खुलासा देने चला हूं 2-4 मिनटों में। पूरी गुफ्तगू का खुलासा में इन 2-4 मिनटों में होगा। झोली सदाकत की थी, सर नबूवत का था, दरमियान में फासला, फासला जोर से कहो, फासला नहीं, बिला फसल, बिला फसल। अब जब मंजर बना ना बिला फसल का, तो काले को तकलीफ सुनिए। ये काला आज इस्लामाबाद में बैठकर अबू बकर को नहीं भौंक रहा। ये 1400 साल पहले अबू बकर को डसने की कोशिश भी कर चुका है। जब मंजर बिला फसल का, डरो नहीं मरो नहीं, वो भौंकता है मुझे दिफा तो करने दो, वो काटता है मुझे दिफा तो करने दो। जब मंजर बिला फसल का था ना, तो काला तड़कने फड़कने लड़कने खड़कने लग गया, लर्जा बरंदाम हुआ, पांव से जमीन निकली। ये क्या, कयामत तक झगड़ा तो इसी बिला फसल पे रहना है, और मंजर बिला फसल बन गया। काला भागा और आकर सदाकत को डसने लग गया। मैं अपनी ज़बान में कहा करता हूँ, काला डसता रहा, अबू बकर हंसता रहा। मुस्तफा का हम सफर खलीफा बिला फसल सैयदना सिद्दीक अकबर, नारे तकबीर। काला सांप डसता रहा, काला सांप, काला सांप मत तुझे समझे गालू है। काला सांप डसता रहा, काला सांप डसता रहा, अबू बकर हंसता रहा। मैं अपने ज़ौक़ का एक शेर इस मकाम पे पढ़ा करता हूँ। सिद्दीक ने सीना तान के काले से कहा होगा, ओ काले सो मेरे गनीम न भूल तू कि सितम की शब को सवाल है। सो मेरे गनीम न भूल तू कि सितम की शब को सवाल है। तेरा जुल्म जबर बला सही, मेरा हौसला भी कमाल है। काला डसता रहा, अबू बकर हंसता रहा। मुझे फिर एक काले ने कहा कि तुम कहते हो अबू बकर हंसता रहा, अबू बकर के तो आंखों में आंसू थे। मैंने कहा उल्लू का पट्टा, तुझे किसने कहा आंसू थे? तुझे किसने कहा आंसू थे? ईमान से बताओ खाने वालों, तवज्जो करके मेरी बात का जवाब देना आगे पीछे वाले। कभी ऐसा भी होता है ना, मैंने एक जुमला कहा है ना, काला डसता रहा, अबू बकर हंसता रहा। ईमान से बताओ कभी ऐसा होता है ना कि बंदा इतना हंसता है, इतना हंसता है, इतना हंसता है कि हंसते हंसते भी आंखों से पानी निकल आता है। निकलता है या नहीं निकलता? काला डस रहा था, अबू बकर हंस रहा था, और आंखों से, भाई काले सांप की बात कर रहा हूं, परेशान ना हो जाना। था जो काला, मैं क्या करूं?
रिवायात में है ना, काला था, अंदर से काला, बाहर से काला, ऊपर से काला, नीचे से काला, दाएं से काला, बाएं से काला, आगे से काला, पीछे से काला, यहाँ भी काला, वहां भी काला। काला डसता रहा, अबू बकर हंसता रहा। हाँ? आंसू और होते हैं, आंखों का पानी और होता है। ईमान से बताओ, अगर कोई आदमी तपती दोपहर को सूरज की तरफ देखे तो आंखों से पानी बहता है या रोता है? बोलो, पानी बहता है ना। अगर किसी आदमी के आंखों में धुआं चला जाए, वो रोता है या आंखों से पानी बहता है? किसी आदमी को नजला जुकाम शदीद हो जाए, वो छींकने लग जाए, वो खांसने लग जाए, तो छींकते छींकते खांसते खांसते वो रोता है या आंखों से पानी बह पड़ता है? किसी आदमी को बुखार, टेम्परेचर शदीद हो जाए तो वो रोता नहीं, आंखों से पानी बहता है। और अकल के अंधों, कमीनों, अबू बकर पे तमन्ना करने वाले बदमाशों, अबू बकर न रोया था, न रोने वाला था, न रोने आया था, वो तो काले को रुलाने आया था। मुस्तफा का हम सफर, सिद्दीक तेरी यारी को, सिद्दीक तेरी यारी को, सिद्दीक तेरी वफादारी को। अबू बकर रोया नहीं, आंखों से पानी बहा, पानी बहा। वो भी क्यों? रीजन है, लॉजिक है, वजह है। पुराने लोग बैठे हैं, सियाने लोग बैठे हैं, अकलमंद लोग बैठे हैं, कुछ दीवाने लोग बैठे हैं। इनसे पूछो कि अगर किसी को सांप काट जाए एड़ी पे, पिंडली पे, तो फिर क्या कहते हैं? कहते हैं फौरन कस के पट्टी बांधो, जहर ऊपर न चला जाए। कहते हैं ना, पट्टी बांधो ताकि जहर सिरायत न करे, ब्लड में सर्कुलेट न करे, और फिर मुंह लगाकर जहर को चूसा भी जाया जाता है। ईमान से बताओ खाने वालों, अबू बकर ने कोई पट्टी बांधी थी? जोर से जवाब दो, पट्टी बांधी थी? ये बड़ा जुमला है। इससे भी अगला जुमला कहता हूँ, अबू बकर ने पाँव हटाया था, ये भी बड़ा जुमला है। इससे भी बड़ा जुमला कहता हूँ, अबू बकर ने पाँव हिलाया था। अबू बकर ने पट्टियां बांधना दूर की बात, पाँव हटाना दूर की बात, पाँव हिलाया ही नहीं। क्यों? क्यों? वफा का तकाजा था कि झोली में नबूवत आराम फरमा है। पाँव हिलाता हूँ, टांग हिलती है, टांग हिलती है, नबी की आंख खुलती है, आंख खुलती है, नबी का आराम जाता है। अबू बकर तो तहैया कर चुका था, जान जाती है तो जाए, पर मोहम्मद का आराम न जाए। नारे तकबीर, नारे खत्म नबूवत, सहाबा, गुस्ताख रसूल, गुस्ताख सहाबा। सिद्दीक तहैया कर चुका था कि जान जाती है तो जाए, पर मोहम्मद का आराम न जाए। तो वो जहर एड़ी से चला पिंडली में, पिंडी से चला रानों में, सरायत करता गया, सर्कुलेट करता गया, ब्लड में मिक्स होता गया, रानों से चला पेट में, पेट से चला जिगर में, जिगर से चला हलक में, हलक से चला दिमाग में। जब सिद्दीक की पूरी बॉडी में, पूरे खून में वो जहर सर्कुलेट कर गया ना, सिद्दीक भी तो बशर था, सिद्दीक भी तो इंसान था। हाँ, तुझे कोई छोटा सा भेड़ काट जाए, हाँ, तू रो रहा होता है। अबू बकर को तो काले काट रहे थे। अबू बकर रोया नहीं, वो जहर जब चला पूरी जान में, खून में सर्कुलेट करके गया और दिमाग तक उस जहर का असर पहुंचा, तो अबू बकर का सर चकराया, माथे पे पसीना भी आया, और शिद्दत जहर की वजह से आंखों से पानी टपकने लग गया। और मैं तो अपने शौक में डूब के कहता हूँ, अबू बकर वो पानी भी पी जाता। एक और जुमला तुझे देता हूं, क्या याद करोगे? छोटा मुंह बड़ी बात। जरूरी नहीं है बड़ी बातों के लिए कोई बड़ा कद हो, बड़ा काट हो, बड़ा जुब्बा हो, बड़ा कुब्बा हो। हाँ, कभी कभी अल्लाह छोटों से, कभी कभी नहीं बल्कि अक्सर अल्लाह छोटों से काम लेता है। एक और जुमला तेरी नजर करने चला।
کہ جب خون میں سارا زہر سرکولیٹ کر گیا تو ابو بکر کی آنکھوں سے پانی ٹپک پڑا. بالکل ویسے ایک تمثیل دیتا جاؤں، میں نے ایک جملہ کہا کہ شاید وہ پانی بھی نہ نکلتا، ابو بکر پی جاتا. کیوں؟ کیسے؟ آپ کبھی کبھی کہتے ہیں نا فلاں جگہ پہ مجھے رونا تو آیا، فلاں جگہ پہ مجھے رونا تو آیا، لیکن میں اپنے آنسو پی گیا. اور لوگ پی بھی جاتے ہیں، نہیں بہنے دیتے. تو آنسو پی جاتا ہے، ابو بکر پانی نہیں پی سکتا تھا؟ ابو بکر بھی پی جاتا، لیکن وہ کیا کرتا کہ رب نے یہ پانی کے قطرے بہانا تھا اور ان قطروں کو نبی کے چہروں پر گرانا تھا، اسی بہانے نبی کو جگانا تھا، پھر پیغمبر کو یار کی وفا کا منظر دکھانا تھا اور اپنے پیغمبر کو جتانا تھا. محبوب آنکھیں کھول دیکھ تو صحیح، میں نے تجھے کیسا یار دیا. عظمت محمد مصطفیٰ، شان صحابہ، ہر صحابی نبی، خلافت راشدہ. محبوب جاگ تو صحیح، دیکھ میں نے تجھے کیسا یاد کیا. جان ہتھیلی پہ رکھے بیٹھا ہے مگر پاؤں ہٹانا دور کی بات، پاؤں ہلاتا بھی نہیں. اب آخری جملے پہ آتا ہوں. جب ابو بکر کی آنکھوں سے پانی کے قطرے ٹپکے اور حضور کے چہرے پہ گرے تو ایک ذوق عباسی میں ڈوبا ہوا ہیرا تمہاری نظر کرتا ہوں، یہاں پہ جملہ دیتا ہوں. جب صدیق کی آنکھوں کے پانی کے قطرے چہرہ مصطفیٰ پہ گرے تو منظر ایسے تھا جیسے آدھی رات کو پھولوں پہ شبنم گرتی ہے. اور جب پھولوں پہ شبنم گرتی ہے نا، شبنم کے گرنے سے پہلے پھول کلی ہوتے ہیں، جب شبنم گرتی ہے نا تو وہ کلی کھل کے پھول بن جاتی ہے. جب تک ابو بکر کی آنکھوں کی شبنم کے قطرے حضور پہ نہیں گرے، حضور بھی سوئے ہوئے تھے. جو ہی شبنم کے قطرے گرے حضور بھی پھولوں کی طرح مسکرا کے اٹھ بیٹھے. حضور اٹھے اور اٹھ کے پوچھا ابو بکر کیا ہوا، خیریت کیا ہوا؟ صدیق نے پھر مسکرا کے کہا ہوگا، زبان شاعر سے کہتا ہوں، پھر مسکرا کے کہا ہوگا حضور کچھ نہیں، بس وہ جولی صداقت کی تھی، سر نبوت کا تھا، منظر بلا فاصل تھا، کالا تڑپنے پھڑکنے لڑکنے کڑکنے لگ گیا. ہاں اس نے مجھے ٹسنا شروع کر دیا. حضور نے پوچھا ابو بکر پھر تو نے کیا کیا؟ ابو بکر نے کہا میں نے ہنسنا شروع کر دیا. حضور نے فرمایا اچھا میرے ہوتے ہوئے کالا تجھے ڈسے؟ کاش کو دو چار زندہ ہوتے. حضور نے کہا ابو بکر میرے ہوتے ہوئے کوئی کالا سانپ تجھے ڈسے؟ ادھر لائے. بالکل آخری منظر کھینچ رہا ہوں، ادھر لا ایڑی، جا تاریخ سیر کے جھروکوں میں جھانک کے دیکھ. ابو بکر نے ایڑی آگے کی، حضور نے اپنے بائیں ہاتھ کی ہتھیلی پر ابو بکر کی ایڑی کو رکھا. آخری جملوں پہ تو جاگ پڑو. حضور نے اپنے بائیں ہاتھ کی ہتھیلی پر ابو بکر کی ایڑی کو رکھا اور اپنے دائیں ہاتھ کی شہادت والی انگلی سے، کس سے؟ یہاں پہ بولو ایک مسئلہ بتانا چاہتا ہوں، کس سے؟ شہادت والی انگلی سے لعاب دہن لگایا اور یوں ٹچ کر پوچھا ابو بکر اب کیا حال ہے؟ تو ابو بکر نے مسکرا کے کہا اللہ کے نبی لگتا ہے کالے کی ساری محنت برباد ہو گئی. اب آؤ موضوع سخن کی کریم نکالوں کہ آج یہ جو شہادت والی انگلی پہ لعاب دہن، تھوڑا کھول کے سمجھا دوں. جب کوئی معاہدہ کرتے ہو نا، اسٹام لکھتے ہو، وصیت نامہ لکھتے ہو، کوئی
बै वगैरह की सेल डीड करते हो तो अगर आदमी पढ़ा हुआ हो तो दस्तखत करता है। उलमा कराम मेरे इस जुमले को आप अपने दिल में रखना। आदमी अगर पढ़ा लिखा हो तो साइन करता है, अगर उम्मी हो तो अंगूठा लगाता है। अगर उम्मी हो तो अंगूठा लगाता है। हुजूर पूरी तवज्जो खाने वालों, मैं पूरे 1.5-2 घंटे का खुलासा निकाल रहा हूँ। हुजूर चाहते तो यूं भी कर सकते थे। हुजूर चाहते लुआब लगाना था ना, यूं भी कर सकते थे, लेकिन हुजूर ने कहा नहीं, शहादत वाली उंगली से। शहादत मानी, शहादत मानी, शहादत मानी गवाही वाली उंगली से। पैगंबर ने इसी शहादत वाली उंगली से एक दिन अली की आंखों पे थप्पा लगाया था खैबर के मैदान में। आज गार में अबू बकर की एड़ी पे धक्का लगाया। हुजूर ने इशारा करके बता दिया, अबू बकर तुझे थप्पा इब्तिदा में लगा रहा हूँ, अली तुझे थप्पा इंतहा में लगा रहा हूँ। इशारा कर दिया, अली तेरी खिलाफत इंतहा में होगी, अबू बकर की खिलाफत भी इंतहा में होगी। नारे तकबीर, खिलाफत राशिदा, खिलाफत राशिदा। सिद्दीक तेरी सदाकत को, सिद्दीक तेरी सदाकत को। नारे तकबीर। आज मैं अकीदत का सलाम पेश करता हूँ शहीद आले हक, शहीद नामूसे साहबा, जानशीन शेखुल हदीस हजरत मौलाना सलीमुल्लाह खान, उनके औलाद साहिबजादे मौलाना डॉक्टर आदिल खान को मैं उनकी शहादत को सलाम करता हूँ कि कोई बदमाश अगर इस्लामाबाद या कराची की सड़कों पर नबी के साहबा को ठोका तो वो मैदान में उतरा, जान दे गया, लेकिन आज नहीं आने दी। आज खाने वालों तुम्हें भी कहता हूं, बात उससे भी आगे बढ़ गई है, बात उससे भी आगे बढ़ गई है। अब तेरे और मेरे नबी के खाके बन रहे हैं, तेरे और मेरे नबी के खाके बन रहे हैं। और कौन बना रहा है? फरांसी कुत्ते, फरांसी खिंजीर, फ्रांस के हरामियों नस्ल मेरे नबी के खाके बनाते हैं। पाकिस्तान के मुसलमानों, पैगाम दो उन फरांसी कंजरों को, कमीनों को कि हम सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन नबी की इज्जत पे कंप्रोमाइज नहीं कर सकते। गुस्ताख नबी की एक सजा, गुस्ताख नबी की एक सजा। अगर उलमा तुम्हें इस काज के लिए बुलाए तो फिर लबैक कहोगे, सरधड़ की बाजी लगाओगे। जो कहते हैं कि हम उलमा का साथ देंगे, खड़े होकर दोनों हाथ खड़े करके वादा करो। लब्बैक लब्बैक, लब्बैक लब्बैक, गूंज के जवाब दो। लब्बैक लब्बैक, लब्बैक लब्बैक। अगर तुम उलमा का साथ देने का आज इकरार वादा करते हो तो फिर आओ, मैं तुम्हें दावत फिक्र देने आया हूँ कि कायदे जमीयत, मुफक्किर इस्लाम, बदर हुर्रियत, इमाम इस्लामी इंकलाब, मौलाना फजल रहमान के
लाओगे? खाली नारों से या उलमा का साथ देकर? दुआ करो अल्लाह तुम्हें कौम लूत से भी बचाए और कौम यूत से भी बचाए। आखिर में वही कहता हूँ कि जाओ जाके मेरे ताबा से कह दो कि अपनी किरणों को गिन के रखे। जाओ जाके मेरे ताबा से कह दो कि अपनी किरणों को गिन के रखे। मैं अपने सहरा के जर्रे जर्रे को खुद चमकना सिखा रहा हूँ। वुसअत दिल है बहुत, वुसअत सहरा कम है, इसलिए मुझको तड़पने की तमन्ना कम है। अब जिसके जी में आए वो ले इससे रोशनी, हमने तो दिल जलाकर सरेआम रख दिया है। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। और एक बात एक ऐलान करता जाऊं, 30 नवंबर को पीडीएम के ज़ेरे तमाम मुल्तान में अजीम शान एहतजाजी जलसा है। शिरकत करोगे? शिरकत करोगे? परचम नबी लेके आओगे? सेकुलर लिबरल लोगों को अपना तहजीब तमद्दुन दिखाओगे? आजादी मार्च की याद ताजा कराओगे? दुआ है अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अब मैं गुजारिश करूंगा जमीयत उलमाए अहले सुन्नत वल जमात के नायब अमीर यादगार असराफ हजरत मौलाना मोहम्मद हातिम साहब दुआ फरमाएं। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति वक़िना अज़ाबन्नार रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमतन इन्नका अंतल वहाब। अल्लाहुम्मा अंसुरिल इस्लाम वल मुस्लिमीन, अल्लाहुम्मा अंसुर मन नसर दीन सय्यिदना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इलाहुल आलमीन, हमारी इस कामयाब कॉन्फ्रेंस को या अल्लाह अपनी रज़ा नसीब फरमा। इलाहुल आलमीन, जो कुछ उलमा ने कहा सुना गया है इसको अपनी बारगाह में कबूल फरमा। या इलाहुल आलमीन, अपने लुत्फ़ व करम से इस वक्त कुफर जो मुसलमानों के खिलाफ इस्लाम के खिलाफ साजिशें कर रहा है या अल्लाह की साजिशों को नाबूद फरमा। इलाहुल आलमीन, तमाम मुसलमानों को इत्तेफाक, इत्तेहाद, मोहब्बत और प्यार के साथ इन कुफ़ार का दिफा करने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह के मुकाबले पर मुसलमानों को पीछा पिलाई हुई दीवार बना। इलाहुल आलमीन, अपने लुत्फ़ व करम से हम सब के दिलों के अंदर हुज़ूर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबाए कराम, औलियाए कराम की इज्जत और हुर्मत को कायम फरमा। सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। तमाम हजरात का शुक्रिया। तमाम हजरात जल्दबाजी किए बगैर इत्मीनान के साथ तशरीफ ले जाएं। किसी किस्म की नारेबाजी